Now let's go for the next show. Oh, it's not the show. It's a masterclass of Pankaj Tripathi, Kalin Bhaiya, Mirzapur. Maybe you remember, of course you remember. Let's end and enjoy each and every moment of this masterclass with one and only Pankaj Tripathi. Music. तो जब सरदार गन मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना। बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा। भाई तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कम से कम मेकर को धन्यवाद तो कर देने दो। Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to 53rd International Film Festival of India in Goa. We are proud to welcome you at Macanese Palace, Auditorium 1, to encourage the students and enthusiasts of cinema in every aspect of filmmaking. A total of 23 sessions, comprising of masterclasses and in conversations, will be conducted this year. The masterclass is Television Institute, NFDC, and Film and Television Institute of India and Entertainment Society of Goa. We are also thankful to the masters who took up their precious time from their busy schedule. Today, as a part of In Conversation session, we have the craft of cinema, character development. In this session, we have one of the most popular actor from India, Mr. Pankaj Tripathi, who will tell us about how does he as an actor. So, before we could invite you on stage, sir, before you could invite you on stage, we want to have an audio-visual clip. So please, yes, let's have the audio-visual clip introducing the work of the master. Yes, we apologize for the same. I request all the dignitaries to please come up on stage. Today's moderator, Sri Gaurav Gandhi, please come up on stage. Also, I request Sri Apurva Chandra, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Ladies and gentlemen, please welcome all these dignitaries for today's session. Now it's time to honor. I request Sri Apurva Chandra, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, to kindly do the honors. First, let's begin with Sri Pankaj Tripathi ji. And Sri Gaurav Gandhi. Sri Gaurav Gandhi, Vice President and Head of Prime Video India. Thank you, sir. Now I request today's moderator, Sri Gaurav Gandhi, to begin with the session. The floor is yours. Thank you. इनको छोड़ने का मुझे 2 रेड कार्ड भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं है कौन, नाम बताओ ना। तो कोई है, नाम पूछ के बताओ, मैं करा। हाँ हेलो। तुम्हें 3 लोग रिस्पॉन्ड किया, मेरे नमस्ते को तुम लोगों ने रिसीव किया। हाँ अरे वाह, कैसे हो? बढ़िया सर। तो ठीक है, हम प्रवचन शुरू करते हैं। नो मिर्जापुर, ओके, अच्छा ओके, वो हो जाएगा।
बीच में हो ही जाएगा। फर्स्ट फिर टाइम किसी मैं सुपरस्टार डॉक्टर से बनना मिल रही चाहता हूँ था। तो मुझे लगा फिर क्यों ना मैं अपना कुछ दिन बीच में रिएक्शन लीडर भी उनके जो बनना भी वो चाहता था, बोल रहे हैं उस पॉलिटिकल पर लीडर। रिकॉर्ड करूँ. सो मैं तो स्टूडेंट लेट्स यूनियन में record था, all the उसके चलते reactions and गिर भी watch गया it with एक me. हफ्ते। It will be fun, okay? हाँ, तो बहुत कुछ था, सो मेनी, सिर्फ एक्टिंग नहीं था। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई हैव सो मेनी चॉइसेस कि इसमें भी जा सकता हूँ, उसमें भी जा सकता हूँ। एक्टिंग का सीन आया मेरे ख्याल से +2 के बाद, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, कि मुझे एक्टिंग करना है। और पेरेंट्स का सपोर्ट था एक्टिंग का, या बिल्कुल मतलब ही नहीं है, करना ही नहीं है एक्टिंग तो? नहीं, वो फुल सपोर्ट था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि इसमें कितनी आगे स्ट्रगल है। सबकी स्टोरीज हैं। टेल अस अबाउट योर स्टोरी ऑन दैट। हाँ, मेरी भी वैसी स्टोरी थी। अभी सुबह में एक जर्नलिस्ट मिली यहीं पे, तो उन्होंने पूछा कि आज मास्टर क्लास है, क्या बोलोगे, क्या करोगे? बोले मुझे भी पता नहीं, मैं तो सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर क्लास कैसे ले सकता हूँ? तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। तो हाँ, मैं सवाल भूल जाता हूँ। स्टोर का मालिक था, जो हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वो भी मुझे सलाह देता था कि मूंछें ऐसी रखो तो कुछ होगा। तो किसकी सलाह ली आपने सबसे ज्यादा आज तक? मैं अपनी पत्नी का ज्यादा सलाह लेता था। परफेक्ट। तो कोई मुझे भी मालूम नहीं था कि ब्रेक थ्रू कैसे होता है। कोई बोलते थे क्रिएटिव माइंड्स को पार्टियों में जाओ, उस समय टीवी चैनल्स के बड़े बोलबाला थे, तो मुझे आइडिया था नहीं। जो एक सुझाव सलाह देता था, ओके, इट माइट पॉसिबल कि सम पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी, अपने पड़ोस से पूछ लेना मैं क्या बोला। हाँ, या पीछे वाले सीट से, अगर किसी को दिक्कत हुई तो ऐसा ही था। मुझे भी मालूम नहीं था कि कैसे होता है, कहाँ होता है। इसकी वजह से ही दैट्स वाई मैं एक सीन, आधा सीन हो गया, कई फिल्मों में काम किया, एडिट हो गई, दिखी ही नहीं। तो पर मलाल नहीं होता था, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अचानक चलते चलते आया, और आप जिस कंपनी में है वो कंपनी आई, और जो एक एक सीन मेरे इधर उधर गिरे थे उनको इकट्ठा करके कालीन भैया बना दी। तो आप बहुत मॉडेस्ट बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप यू आर अ फॉर्मर पार एक्सीलेंस, एंड आई वांट टू नो अबाउट द फर्स्ट ब्रेक। फर्स्ट ब्रेक मैं तो हॉस्टल में सोया था, एक एक्टर नहीं आया शूटिंग पे, तो उनके आदमी आए, मैं कल ही मिला था उनसे, श्याम जी नाम है। तो श्याम जी आए और बोले कि अरे उठो। तो क्योंकि उनको एक किसी ने बोला था कि एक कॉमेडी करने वाला एक्टर चाहिए, बोले एक लड़का सोया उधर, कॉमेडी अच्छा करता है एक्टर। तो एक्टर सो रहा था, उसी में कास्टिंग हो गई, उसकी उठा के कास्टिंग हुई थी, और उसके बाद जगह रहा 8 साल तक, कास्टिंग ही ना हो, दौड़ते रहो कि भाई कास्टिंग कर लो, कास्टिंग कर लो। पहला ब्रेक सोते में मिला, हाँ, और उसके बाद ब्रेक ही मिलते गया। तो पंकज जी थोड़ा बताइए कि यू हैव डन मूवीज एंड यू हैव डन स्ट्रीमिंग सीरीज एंड एड फिल्म्स एंड एवरीथिंग, तो and you are not just the king of Mirzapur, you're king of streaming now with shows across every service. तो एक एसेंशियल डिफरेंस है स्ट्रीमिंग के शोज में वर्सेस फिल्म्स की। फिल्म्स में आपका कैरेक्टर किरदार 2.5-3 घंटे के लिए होता है, ऑफ कोर्स इट रिमेन्स इन पीपल्स माइंड, बट इन स्ट्रीमिंग सीजन बाय सीजन होता है। सीजन हुआ, ब्रेक हुआ, फिर आया, बट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड वो दिमाग में रहता है, हमारे साथ रहता है, हमेशा रहता है। तो अभी भी मिर्जापुर 3 की बात नहीं करेंगे आज, बताएंगे नहीं कुछ भी अभी फिलहाल, लेकिन कालीन भैया तो है हमारे साथ हमेशा दिमाग में। तो क्या डिफरेंस है जब आप रोल प्ले करते हैं इन अ स्ट्रीमिंग वर्सेस अ फिल्म और एनीथिंग एल्स? हाँ, स्ट्रीमिंग में वही है कि वो अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में सेम कैरेक्टर को आपको कंटिन्यू करना है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अलग हो सकते हैं, इंसिडेंट नए आ सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक तो वही रहेगा। जैसे कालीन भैया 1 में थे वैसे ही 2 में बिहेव करेंगे। चुनौतियां, स्टोरी ये नहीं हो सकती हैं, तो वो वही है चुनौती, उसी को कंटिन्यू करने का। इनफैक्ट मेरा तो अब ऐसा हो गया कि मैं इधर भी सीरीज कर रहा हूँ, फिल्मों में भी सीरीज कर रहा हूँ, फुकरे 3 भी कर रहा हूँ, स्त्री 2 भी कर रहा हूँ। तो मेरा बहुत 2-3 चल रहा है जीवन में। हाँ, अरे कहाँ हो, आज प्लानेट 2 के शूटिंग पे हूँ। अच्छा, तो 4 का कब चालू होगा? मैं खुद भी बोर हो गया कि यार इतना 2, 3, 4 क्यों हो रहा है। समझो, जिस एक्टर की 8 साल कास्टिंग नहीं हुई, उसके पास 4-4, 5-5 फ्रेंचाइजी है। तो वो हाँ, अब वो डिफरेंस है कि
मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो मुझे याद है मिर्जापुर 2 की शूटिंग में पहले दिन हम शूट कर रहे थे, तो गुरु जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो आके बोला, पंकज जी आप ऐसे नहीं करते थे। मैं बोला अच्छा कैसे करता था, एक सीन दिखाओ। तो सीजन 1 का एक सीन ला के दिखाए और बोला कि वो चीज जो आपने सीजन 1 में ऐड की थी, जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, अब वो वही हमें करना है 2 में। कि कालीन भैया आपको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, डिनाई किया, क्या वो सहमत हैं, असहमत हैं, मारेंगे, छोड़ेंगे। तो फिर मैं देख के कई बार अपने उस पुराने सीरीज का कोई एक सीन देख के we have time for all the questions, don't worry. We'll go. हाँ, अभी हम क्राफ्ट पे आए ही नहीं है। हाँ, तो अभी आते हैं उस पे, पर क्राफ्ट एक पे बार आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो can we start with I think you picked up your hand first. हाँ, Gentleman right here, the t-shirt. हाँ, Can you ask? मैंने जो भी सीखा है सर आपसे सीखा है। अच्छा, माइक में बोलते तो सब लोग सुनते हैं। आप तक पहुंचना वो जरूरी है। हाँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, थिएटर करता हूँ। वो बात, माइक भी पहुंच गया आपके पास लकीली। सर मैं इलाहाबाद से हूँ, थिएटर करता हूँ। जो भी सीखा है मैंने आपको देख करके सीखा है। मैं आपका एक लक्ष्य हूँ, आप मेरे द्रोण हैं। सर मेरी हार्ट बीट इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है। और सर एक रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पैर भिजवा दूंगा आपको। और एक आपसे कुछ भी निशानी चाहिए सर, कुछ भी। आपने मनोज सर से ली थी, मुझे आपसे चाहिए सर, प्लीज सर। ठीक है, मैं कुछ दे दूंगा। कुछ तो प्रेम तो दे ही दूंगा और कुछ दूंगा। प्रेम भी सर। और ये एक्सचेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ी निशानी है, जो हम आपस में एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये आदान प्रदान ऊर्जा का हो गया है। कंट्रोल में नहीं हूँ। तो खुशबू का सवाल है कि सर इतना आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, अभी इतना फेम मिलने के बाद ये आपका जो जर्नी चल रहा है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आप इतना डाउन टू अर्थ हर चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स सो बिकम सो ओवरवेलमिंग फॉर अस आल्सो। ये कैसे मेंटेन करते हैं सर अब ये अपना जो आपका ये कैरेक्टर है, जो भी आज का सेशन भी है कैरेक्टर के बारे में ही है। सो दिस इज माय क्वेश्चन सर, दिस इज खुशबू's क्वेश्चन व्हाट शी वाज आस्किंग इन द मॉर्निंग। जी हाय खुशबू। अभी वो रिकॉर्ड कर रहा है ना मोबाइल में, इसलिए मैंने बोला। उस लड़के के हाथ में गोप्रो है। मैं एक शूटिंग कर रहा था एक फिल्म का, और वहाँ कुछ 300-400 क्राउड प्रैक्टिस थे, और कैमरा हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि बहुत कैमरे हैं हमारे पास, 3-4 तरफ से हम इस फिल्म को, इस सीन को फिल्माएंगे, और कुछ एक्शन चल रहा है, गोली वाली लोग भाग रहे हैं। तो मेरे पैर में एक पत्थर लगा करते हुए सीन में। 300-400 लोग थे तो हम झुक भी सकते, तो मैं झुक के देखा क्या है ये, तो फिर पत्थर शार्प था, तो उठाया तो देखा गोप्रो, वापिस में रख दिया। अरे बंदा बताया ही नहीं है, कुछ डायरेक्टर होते हैं। हाँ, अब सवाल पे आते हैं खुशबू के। हाँ, जब आप बतौर एक्टर अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, एक तो मैं जो किताबें पढ़ा हूँ, जैसे लोगों से मिला हूँ, जिस किस्म की अपब्रिंगिंग है वो हम में होता है, उसके संग संग मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग। तो एक्टिंग करते हुए हमारा काम है चरित्र कैरेक्टर्स को पढ़ना, साइकोलॉजी को समझना, कोई कैसा रिएक्ट करता है तो क्यों करता है समझना। तो मैं उसको बड़ा सीरियसली पढ़ता हूँ, और मुझे पढ़ते हुए सबसे पहले मैं खुद ही को समझता हूँ कि हम अपने को जानेंगे तब बाकी 10 किरदारों को जान पाएंगे, कह पाएंगे। और कैरेक्टर्स तो इसलिए वो बनावट सॉफ्टवेयर वैसा हो गया है, तो मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो वो मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन जिसने सॉफ्टवेयर बनाई है, और उसमें ईश्वर भी हैं, किताबें भी हैं, टीचर्स भी हैं, लोग भी हैं, उसमें स्किल है, क्राफ्ट है, ट्रेनिंग है, तो वो लोग बदलना चाहेंगे तो बदलेगा। Really admire you, sir. Thank you so much. मैंने पूछा तो अबाउट की जो आपकी ट्रेनिंग है नेशनल स्कूल से। हाँ यस, कि बोला कि आप एनएसडी की ट्रेनिंग कितनी हेल्पफुल होती है फिल्मों की कास्टिंग में, उन्होंने पूछा। मैं बोला बिल्कुल नहीं होती है। कास्टिंग हो जाने के बाद परफॉर्म करने में एक्टर की ट्रेनिंग हेल्पफुल होती है। अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं तो आप परफॉर्मेंस में कमाल कर सकते हो, लेकिन कास्टिंग में आप कमाल नहीं कर सकते हो, वो कास्टिंग में हेल्पफुल नहीं होगा। मेरे साथ भी वही हुआ कि मुझे कई बार बोलते थे ऐसे करो,
हमारे यहाँ अमूमन कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं ये सीन, एक्टर को समझाते हैं कि सीन को कैसे परफॉर्म करना है, ये डायरेक्टर बताएगा शूटिंग में कैसे परफॉर्म करना है। उसका ऑडिशन इस बात का टेस्ट नहीं है कि ये सीन कैसा शूट होगा, कैसा परफॉर्म होगा। ऑडिशन इस बात का टेस्ट है कि आप एक्टर कैसे हैं, आपकी एक्टिंग का टेस्ट है, इम्तिहान है। तो मुझे आपको उस समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ध्यान न देंगे तो अपनी हैप्पीनेस कुर्बान करते हैं किरदारों के लिए, और किरदारों का सैडनेस, उनका दुख, उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट हम अपने जीवन में ले लेते हैं। तो यही कारण है कि कई बार आपको, मुझे लगता है ऐसा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। अभी हम बोल रहे थे कि मेहनत जरूरी है किसी भी क्राफ्ट के लिए, एक्टिंग के लिए भी उतना ही। तो गुंजन की ये लाइन है, और कालीन भैया का मुन्ना व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। हम ब्रह्मास्त्र। अरे यार पैसे लाओ डायलॉग बोलने के पैसे लगते हैं। सुल्तान, हाँ, ये यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरी से इज्जत बचाता है। Thank you very much. सर सुशीला ने संडास तक सब दिखाई दे रहा है। तुम तो बोल ही दिए। हाँ, अरे वाह, सुशीला से लेकर संडास बहुत मजे का काम है अभिनय, बहुत मजा आता है। तो ये सीन फिल्माते हुए मुझे सीन की याद आ गई कि जब इसमें विद्रोही आता है इस सीन में, तो उनको उनके नेक पे थोड़ा हमने कैरेक्टर बनाया था कि वो स्पॉन्डिलाइटिस जैसा है, जल्दी मुड़ नहीं पाते हैं। वो गेट खुलते हैं और आयुष्मान घुसते हैं, और मैं गेट खुलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, खुश रहो बेटा, और वो आगे बढ़ता है और ये भूल जाते हैं। और पीछे से राजकुमार आते हैं और फिर वो बोलते हैं नमस्ते अंकल। वो बोलते हैं अभी प्रणाम किया, अभी बोल रहा है नमस्ते अंकल। मुझे लग रहा है यही बोल रहा है, जबकि उसने पीछे वाला है। बोला है कि यार उसकी ऐसा कुछ करता हूँ मैं, मुड़ गया, देखना ध्यान से, अभी प्रणाम किया तो बोल रहा है, जबकि नमस्ते पीछे वाला बोल रहा है। तो उस सीन में बड़ा मजा आया था करते हुए हमें। वही सुशीला से लेकर तो पूरे सीन का ब्रीफिंग दे दिया। चलो चलिए, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू फॉर योर टाइम।